بنگلور میں پہلی منزل سے گر کر 1.5 سالہ معصوم بچی شدید زخمی، بچی کو گرتا دیکھ صدمے سے ماں بھی بے ہوش ہو کر اسپتال پہنچ گئی۔ تفصیلات کے مطابق بنگلور کے ایک رہائشی علاقے میں ایک کمسن بچی جو چلنا بھی نہیں جانتی تھی، کھیلتے ہوئے اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلی اور توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے پہلی منزل کی بلندی سے سیدھے نیچے سڑک پر جا گری۔ زمین پر گرنے کی وجہ سے بچی کے سر پر شدید چوٹیں آئیں اور اسے خون میں لت پت حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا۔ یہ حادثہ اس وقت مزید المناک صورتحال اختیار کر گیا جب بچی کی ماں نے اپنی لخت جگر کو اس حال میں دیکھا۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے بچی کو بلندی سے گرتا دیکھ کر صدمہ برداشت نہ کر سکی اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ ڈاکٹرز کے مطابق صدمے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ خاتون کی حالت بگڑ گئی ہے اور وہ بھی ICU میں زیر علاج ہے۔ شہر حیدرآباد کے علاقے عنبرپیٹ میں GHMC کی صفائی کارکن بس کی زد میں آ کر ہلاک ہوئی۔ ساتھیوں نے نعش سڑک پر رکھ کر زبردست احتجاج کیا۔ حیدرآباد کے علاقے عنبرپیٹ میں آج صبح اس وقت کشیدگی پھیل گئی جب ڈیوٹی پر مامور GHMC کی ایک خاتون ملازمہ بس کی زد میں آ کر ہلاک ہوئی۔ اس واقعے کے بعد مشتعل ملازمین نے سڑک پر احتجاج درج کروایا۔ بتایا جاتا ہے کہ ایم پشپا صبح سویرے عنبرپیٹ کے علی کیفے چوراہے پر اپنی روزانہ کی ڈیوٹی انجام دے رہی تھی کہ ایک تیز رفتار بس نے اسے کچل دیا، جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ حادثے کی خبر پھیلتے ہی بڑی تعداد میں GHMC کے صفائی ملازمین موقع پر پہنچے اور انہوں نے سڑک پر دھرنا دیا۔ مظاہرین نے تقریباً 1 گھنٹے تک سڑک کو بند رکھا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت اور GHMC مقتولہ کے خاندان کو فوراً اور مناسب مالی معاوضہ فراہم کرے، خاندان کے ایک فرد کو سرکاری ملازمت دے اور غفلت برتنے والے ڈرائیور کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی عنبرپیٹ پولیس اور کلوز ٹیم جائے وقوع پر پہنچ گئی اور حادثے کی جگہ سے شواہد اکٹھا کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا۔ پولیس حکام نے مظاہرین سے بات چیت کرتے ہوئے انہیں انصاف کی یقین دہانی کرائی اور نظم و ضبط کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ BRS رہنما ہریش راؤ نے وزیر پی سرینواس ریڈی کے حالیہ بیانات پر سخت رد عمل ظاہر کیا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اکیلے نہیں بلکہ سب بدعنوان ہیں۔ تلنگانہ کی سیاست میں الزامات اور جوابی الزامات کا سلسلہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ سابق وزیر و BRS رہنما ہریش راؤ نے وزیر پونگلیٹی سرینواس ریڈی کے حالیہ بیانات پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کانگریس حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ وزیر پونگلیٹی سرینواس ریڈی کی جانب سے یہ کہنے پر کہ اکیلے میں ہی نہیں سب بدعنوان ہیں، ہریش راؤ نے پونگلیٹی سرینواس ریڈی پر سخت تنقید کی اور کہا کہ پونگلیٹی اب اپنے دامن پر لگے داغ دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا کہ پی سرینواس ریڈی کا یہ دعویٰ کہ وہ تنہا بدعنوان نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھی وزراء بھی اس میں شامل ہے، دراصل پوری کانگریس کابینہ کے چہرے کو بے نقاب کر رہا ہے۔ وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے HIV ایڈز کے خلاف کیبل برج پر منعقد آگاہی مہم میں شرکت کر عوام کو موذی مرض سے بچاؤ اور سماجی رویوں میں تبدیلی کا اہم پیغام دیا۔ حکومت تلنگانہ ریاست کو صحت مند اور متحرک بنانے کے لیے HIV ایڈز کے خلاف ایک بڑی مہم چلا رہی ہے۔ اس سلسلے میں حیدرآباد کے مشہور کیبل برج پر تلنگانہ ایڈز کنٹرول سوسائٹی کے زیر اہتمام ایک بڑا آگاہی پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور عوام کو اس موذی مرض سے بچاؤ اور سماجی رویوں میں تبدیلی کا اہم پیغام دیا۔ کیبل برج پر ایک منفرد انسانی زنجیر بنائی گئی جہاں سینکڑوں افراد نے HIV ایڈز کے خلاف متحد ہونے کا عہد کیا۔ وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے بھی انسانی زنجیر میں شرکت کی اور شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ HIV اب جان لیوا مرض نہیں رہا، بشرطے کہ بروقت تشخیص اور علاج شروع کیا جائے۔ وزیر صحت نے بتایا کہ تلنگانہ حکومت 127 ٹیسٹنگ سینٹرز اور 33 ART مراکز کے ذریعے 1,14,000 سے زائد مریضوں کو مفت علاج اور ادویات فراہم کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ جیلوں اور سرکاری اسپتالوں میں خصوصی اسکریننگ کیمپس بھی لگائے جا رہے ہیں۔
साइबराबाद में झीलों की बहाली का मिशन अम्बीर चेरुवु और अली तालाब समेत 8 मुकामात पर सफाई मुहिम का आगाज किया गया। साइबराबाद के इलाकों में आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती बेहतरी के लिए बड़े पैमाने पर काम शुरू किया गया है। हुकाम की जानिब से झीलों की साफ सफाई को यकीनी बनाने और उनके अतराफ अकनाफ के माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। आज साइबराबाद के मुख्तलिफ हिस्सों में खास तौर पर अम्बीर चेरुवु और अली तालाब में झील की सतह पर फैली हुई आबी पौधों और दीगर बूटियों को निकालने का काम किया गया। आपको बता दें कि ये ऐसे पौधे होते हैं जो न सिर्फ पानी की ऑक्सीजन कम करते हैं बल्कि मच्छरों की अफजाइश का सबब भी बनते हैं। हुकाम के मुताबिक सिर्फ 1 या 2 झीलें नहीं बल्कि पूरे साइबराबाद में मजमूई तौर पर 8 मुख्तलिफ मुकामात पर सफाई और बहाली के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इस मुहिम का बुनियादी मकसद झीलों की कुदरती हालत को बहाल करना और ये यकीनी बनाना है कि बारिश का पानी उन ज़खायर में सही तरीके से जमा हो सके। हुकाम ने यह भी वाज़ेह किया कि ये एक मुस्तकिल अमल है जिसका मकसद झीलों की बेहतर निगहदाश्त और शहरियों के लिए एक साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल फराहम करना है। बीआरएस की तलबा तंजीम बीआरएसपी ने मूसा नदी के तास में वाक़ बस्तियों में हुकूमत की कार्रवाइयों से मुतासिरा खानदानों से मुलाकात की। गरीबों के घरों को मसमार किए जाने पर शदीद एहतजाज का इंतबाह दिया। मूसा नदी के तुग़यानी वाले इलाकों में मकानात के इन्हदाम के खिलाफ गम व गुस्सा और नाराज़गी पाई जा रही है। मलकपेट हल्के के मूसरमबाग के वाम्बे बस्ती में बीआरएस की तलबा तंजीम बीआरएसवी ने अवामी हिमायत में सड़कों पर उतर कर ज़बरदस्त एहतजाज किया। बीआरएसवी के मुकामी रहनुमा नरेश यादव ने दीगर कायदीन के हमरा मूसा नदी के तास में वाक़ बस्तियों का तफसीली दौरा किया। उन्होंने सैलाब और हुकूमती कार्रवाइयों से मुतासिरा खानदानों से मुलाकात की और ये यकीन दिलाया कि बीआरएसवी हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ी है। नरेश यादव ने कहा कि गरीबों को बेघर करना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नरेश यादव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को बराह रास्त मुखातिब करते हुए कहा कि वो अपनी बेज़मीर सियासत को बंद करें। गरीबों के सरों से छत छीनने का सिलसिला फौरन बंद किया जाए। अगर आम आदमी के घर मसमार किए गए तो बीआरएसवी खामोश नहीं रहेगी। साबिक वजीर जीवन रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बनाया। भारत राष्ट्रीय समिति में शमूलियत का इशारा दे दिया। तेलंगाना की सियासत में एक अहम पेशरफ्त हुई है। साबिक वजीर व कद्दावर रहनुमा जीवन रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी से मुस्तफी होने के बाद अब भारत राष्ट्रीय समिति में शमूलियत का इशारा दिया है। जीवन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए न सिर्फ कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी को निशाना बनाया है बल्कि केसीआर के दौरे हुकूमत को रियासत का सुनहरा दौर भी करार दिया है। साबिक वजीर जीवन रेड्डी ने खुलकर बीआरएस की हिमायत की है। उनका कहना है कि केसीआर की 10 साला हुक्मरानी मौजूदा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हुक्मरानी से कहीं ज्यादा बेहतर और अवामी उमंगों की तर्जुमान थी। जीवन रेड्डी ने कहा कि अवाम ने बड़ी उम्मीदों के साथ कांग्रेस को मौका दिया था लेकिन नतीजा सिर्फ मायूसी की सूरत में निकला है। जीवन रेड्डी ने तेलंगाना की तहरीक में केसीआर के किरदार को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि अलहदा रियासत का ख्वाब सिर्फ केसीआर की वजह से शर्मिंदा ताबीर हुआ है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। उन्होंने मजीद कहा कि रेवंत रेड्डी की इंतजामिया देखने के बाद अवाम अब दोबारा केसीआर की दूर अंदेश क़यादत को याद कर रहे हैं। నేను కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేసిన నాడు ఏదైతుందో దాని ప్రత్యామ్నాయంగా ప్రతిపక్ష పార్టీ ఏ పార్టీలో చేయడం అనేది ఎంచుకోబోతుందని చెప్పని పేర్కొన్నారు. అంటే ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఏదైతుందో ఎప్పుడైతే ప్రజలు ఈ 2.5 సంవత్సరాల కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డి గారి పాలన చూసిన తర్వాత రేవంత్ రెడ్డి గారి పాలనతోనే గత కేసీఆర్ గారి యొక్క ప్రభుత్వం ఇట్ వాజ్ మచ్ బెటర్. గత 10 సంవత్సరాలు వారు అందించినటువంటి ఒక పాలనకి తిరోగమనం నడుస్తుంది. ముఖ్యంగా సమాజంలో అతిపెద్ద వర్గం రైతాంగమే, రైతు కూలీలు అని చెప్పంటున్నా. ఆ రైతాంగం రైతు కూలీలకు సంబంధించి ఆనాడు సమయంలో పెట్టుబడి సమకూర్చి రైతును ఆదుకోవడం జరిగిందని చెప్పంటున్నా. फिशरीज कॉरपोरेशन के चेयरमैन मित्तू साई कुमार ने बीआरएस रहनुमा हरीश राव की माली हैसियत पर सवाल उठाते हुए संगीन इल्जामात आयद किए हैं।
चेयरमैन फिशरीज कॉरपोरेशन मितु साई कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साबिक वजीर हरीश राव पर इल्जामात की बौछार की है। उन्होंने हरीश राव की माली हैसियत पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक वो वक्त था जब हरीश राव 10,000 रुपये हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते थे, लेकिन आज वो 10,000 करोड़ रुपये के मालिक कैसे बन बैठे। उन्होंने हरीश राव को लैंड डिमॉन यानी जमीनें हड़प करने वाला करार देते हुए कहा कि मुत्तहिदा जिला मेदक में उनकी बदउनवानियां गिनती से बाहर है। मितु साई कुमार ने इल्जाम लगाया कि हरीश राव ने इख्तिदार का नाजायज फायदा उठाते हुए गरीबों और आम लोगों की जमीनों पर कब्जे किए और अब वो अखलाकियात का लिबादा ओढ़कर दूसरों को दर्ज दे रहे हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सजना, जॉइंट सीपी ट्रैफिक जोएल डेविस और जीएचएमसी कमिश्नर आरबी कन्नन ने ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए शेखपेट टोली चौकी राहदारी पर जारी कामों का जायजा लिया। शहर हैदराबाद की मसरूफ तरीन राहदारी शेखपेट टोली चौकी में ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने और सड़कों की तोसी के कामों में तेजी लाने के लिए आला हुकाम ने आज वहां का दौरा किया। जीएचएमसी कमिश्नर आरबी कन्नन, हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार व दीगर आला ओहदेदार इस मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि हुकाम ने इन इलाकों में ट्रैफिक में रुकावट बनने वाले अवामिल की निशानदेही की है। बारिश के पानी के निकासी को यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम और नालों की सफाई की जरूरत पर जोर दिया गया है और इस सिलसिले में मुताल्लिका हुकाम को हिदायतें जारी की गई है। कमिश्नर जीएचएमसी और पुलिस कमिश्नर ने मुश्तरका तौर पर कहा कि इन इक़दाम का मकसद न सिर्फ ट्रैफिक के अज़दहाम को कम करना है बल्कि सड़क हादसा की रोकथाम और आवाम को सफ़र की बेहतर सहूलियात फराहम करना है। उन्होंने मुताल्लिका महकमों को यह हिदायत जारी की है कि वो बाहमी तालमेल के साथ इन कामों को मुक़र्ररा वक्त में मुकम्मल करें। रियासत तेलंगाना में 12 अप्रैल से शदीद गर्मी की लहर का इंतबाह, पारा 44 डिग्री पार कर जाने का इम्कान है। रियासत तेलंगाना के अवाम होशियार हो जाए। महकमे मौसमियात और मौसमियाती तज्जियाकारों ने 12 अप्रैल से 22 अप्रैल तक रियासत में शदीद गर्मी की लहर का इंतबाह दिया है। अगले 10 दिन तेलंगाना के मौसमी लिहाज से इंतहाई सख्त होने वाले हैं। रिपोर्ट कहती है कि 12 अप्रैल से पूरी रियासत तेलंगाना में दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ कर जाएगा। खासतौर पर शुमाली और मशरक़ी तेलंगाना के इन अजला को रेड मार्क यानी शदीद खतरे वाले ज़ुमरे में रखा गया है, जहां पर दर्जे हरारत 44 डिग्री सेल्सियस को भी उबूर कर सकता है। हैदराबाद में भी गर्मी की लहर रहेगी। 12 से 22 अप्रैल के दौरान मुसलसिल 10 दिनों तक दर्जे हरारत 40 से 41 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है। मौसमियाती माहिरीन का कहना है कि इस दौरान बारिश के इम्कानात न होने के बराबर है। अगर कहीं बारिश हुई भी तो वो सिर्फ इक्का दुक्का मुकामात पर होगी, जिससे गर्मी की शिद्दत में कोई कमी नहीं आएगी। शदीद गर्मी और लू के खतरे के पेश नज़र आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने, ORS, नारियल पानी और नींबू पानी का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया है। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने को कहा गया है। बाहर निकलते वक्त सूती कपड़े पहनने और सर को ढांपने का भी मशवरा दिया जाता है। शदीद धूप में बच्चों और बुजुर्गों के लिए नुकसान हो सकता है, उन्हें ठंडे मुकामात पर रहने का मशवरा दिया गया है। जिला इंतजामिया और महकमे सेहत को भी चौकस कर दिया गया है ताकि लू लगने के मामलात से निपटा जा सके। वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने चंचलगुड़ा जेल का दौरा करते हुए कैदियों के लिए खुसूसी तिबी कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। रियासती वजीर बराए तिब व सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने आज हैदराबाद की तारीखी चंचलगुड़ा जेल का दौरा किया और कैदियों के लिए मुनक्किद एक खुसूसी तिबी कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये कैंप महकमे सेहत व तिब के ज़ेर एहतमाम कैदियों की सेहत की जाँच के लिए लगाया गया था। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर सेहत ने एक अहम पॉलिसी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत कैदियों की सेहत को लेकर संजीदा है और अब से रियासत की तमाम जेलों में हर 3 माह में एक बार इसी तरह के तिबी कैंप मुनक्किद किए जाएंगे। तेलंगाना हाई कोर्ट ने मीडिया एक्रीडिटेशन पॉलिसी के खिलाफ दायर दरख्वास्तों की समाअत कर हुकूमत को इस मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने को कहा है।
تلنگانہ ہائی کورٹ نے ریاست میں میڈیا نمائندوں کے لیے وضع کردہ میڈیا ایکریڈیٹیشن پالیسی کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت نے حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس معاملے پر اپنا موقف واضح کرے اور جوابی حلف نامہ داخل کرے۔ آپ کو بتا دیں کہ ریاستی حکومت کی جانب سے جاری کردہ ایکریڈیٹیشن پالیسی کے چند ضوابط کو صحافتی حلقوں میں متنازع قرار دیا گیا تھا۔ مختلف صحافتی تنظیموں اور انفرادی درخواست گزاروں نے عدالت سے رجوع کیا تھا، جن کا موقف ہے کہ موجودہ پالیسی کے سخت قوانین چھوٹے اخبارات، ڈیجیٹل میڈیا اور آزاد صحافیوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ سماعت کے دوران عدالت نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ حکومت کی جانب سے جواب داخل کرنے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ حکومت کے لیے جوابی حلف نامہ داخل کرنے کا آخری موقع ہے۔ اگر اگلی سماعت تک جواب داخل نہیں کیا جاتا ہے تو عدالت دستیاب ریکارڈ کی بنیاد پر فیصلہ سنائے گی۔ درخواست گزاروں کے وکلاء نے یہ دلیل دی ہے کہ ایکریڈیٹیشن کے لیے مقررہ معیار غیر منصفانہ ہے اور ان میں ترمیم کی ضرورت ہے تاکہ تمام مستحق صحافیوں کو سرکاری سہولیات تک رسائی مل سکے۔ عدالت نے اس کیس کی مزید سماعت کو ملتوی کرتے ہوئے حکومت کو یہ ہدایت جاری کی ہے کہ وہ پالیسی کے قانونی پہلوؤں اور صحافیوں کے اعتراضات پر جامع رپورٹ پیش کرے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔